السلام علیکم ناظرین، 4TV خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، QMax سفائر، ساجد ریزیڈینسی، QMax مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ QMax فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، QMax فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ QMax فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پتی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے، خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس، اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈینسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈینسی فیز 2، بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈینسی فیز 2، where life comes alive۔ کیا تلنگانہ میں مجالس مقامی انتخابات 42% تحفظات پر ہوں گے؟ سیاسی جماعتوں میں تجسس، پیر کو سپریم کورٹ میں اور 8 تاریخ کو ہائی کورٹ میں سماعت۔ تلنگانہ BJP میں مجالس مقامی انتخابات کی تیاریاں، ضلعی صدور اور پارٹی عاملہ ارکان کا اجلاس، ہر ضلع کا ایک انچارج مقرر، رام چندر راؤ کا اعلان۔ مال و زر کے لیے خونی رشتوں کا خون، قتل آسان ہو گیا ہے، پولیس و انتظامیہ کا کمزوری کا مظاہرہ۔ اور قرض کی رقم واپس نہ لوٹانے پر ایک شخص پر قاتلانہ حملہ، کنچن باغ پولیس اسٹیشن حدود میں افسوسناک واقعہ، پولیس مصروف تحقیقات۔
और अब पेश हैं खबरें तफसील से। तेलंगाना में मजालिस मुकामी इंतखाबात में 42% तहफ़्फ़ुज़ात सरकारी तौर पर दिए जाएंगे या फिर सियासी तौर पर पार्टी फैसला करेगी। तेलंगाना हुकूमत ने बीसी तबके को 42% तहफ़्फ़ुज़ात देने का ऐलान किया है। इसके लिए हुकूमत ने तेलंगाना असेंबली में बिल मंजूर किया है, लेकिन इसको मरकजी हुकूमत की तरफ से मंजूरी न मिलने पर तेलंगाना हुकूमत ने जियो जारी करते हुए मजालिस मुकामी इंतखाबात में बीसी तबके को 42% तहफ़्फ़ुज़ात देने का ऐलान किया है। ताहम इस सिलसिले में हाई कोर्ट में हुकूमत के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दाखिल की गई, जिसकी समाअत 8 अक्टूबर को होगी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के खिलाफ दाखिल की गई है, जिसकी समाअत पीर यानी 6 अक्टूबर को होने वाली है। पीर के दिन फैसला क्या होगा, इस पर सियासी जमातों में तजस्सुस पाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के फैसले को कलअदम करार दिया तो हुकूमत को पुराने तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर इंतखाबात मुनक्किद करना होगा। हुकूमत को 27% बीसी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात पर इंतखाबात की तैयारी करनी होगी। पीर को फैसला क्या होगा ये हर कोई जानता है, क्योंकि 50% तहफ़्फ़ुज़ात से तजावुज़ करने वाले आदद शुमार को कबूल नहीं किया जाएगा। इसके मुताल्लिक़ एक मुकदमा पहले ही सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर दौरा है। मजालिस मुकामी इंतखाबात के लिए तमाम पार्टियों ने तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। कांग्रेस हुकूमत भी चाहती है कि नवें शेड्यूल में इसको शामिल करे बगैर 42% तहफ़्फ़ुज़ात बीसी तबके को देना मुमकिन नहीं है, इसलिए वो भी सियासी तैयारी के साथ मज़ीद इस मामले में ड्रामाबाजी कर रही है। तेलंगाना हुकूमत को अपने सियासी ऐलान को अमली जामा पहनाने के लिए और बीसी तबके को खुश करने के लिए ओसी तबके का नुकसान करना होगा। हुकूमत के 42% तहफ़्फ़ुज़ात वादे को पूरा करने के लिए ओसी तबके के 15% का नुकसान करना होगा। हुकूमत के लिए ये इंतखाबात उस गले की हड्डी की तरह हैं जो निगल भी नहीं सकते और उगल भी नहीं सकते। तेलंगाना के मजालिस मुकामी इंतखाबात में 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का ऐलान करते हुए जो जियो जारी किया गया है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की गई है, जिसकी समाअत पीर के दिन होगी। इस तनाजुर में ताज़ा सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी को नायब वज़ीर आला बट्टे विक्रमार्का, पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ को पूनम प्रभाकर रेड्डी ने तफसीलात पेश की। इसके बाद पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने और दीगर काबीनी वज़रा ने पीसीसी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा जुबली हिल्स असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब और वोट चोरी की दस्तखती मुहिम के बारे में तबादला ख्याल किया गया। इम्कान है कि नायब वज़ीर आला भट्टे विक्रमार्का, उनके हमरा पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़, वज़ीर पूनम प्रभाकर दिल्ली रवाना होंगे। दिल्ली में ये कायदीन माहिर वकला से मुलाकात करते हुए मुकदमे की समाअत पर तबादले ख्याल करेंगे। तेलंगाना बीजेपी दफ्तर में रियासती सदर रामचंद्र राव की सदारत में ज़िलई सुदूर का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में पार्टी के एमपीज़, एमएलएज़ और रियासती एग्जीक्यूटिव के अरकान ने शिरकत की। इजलास में जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब पर खुसूसी तवज्जो दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि पहले ही 5 रुकनी कमेटी कायम की जा चुकी है, जो जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब की हिकमत अमली बनाएगी। सदर रामचंद्र राव ने 3 अफराद को तजावीज़ हासिल करने के लिए मुकर्रर किया ताकि जुबली हिल्स में कामयाबी के लिए तफसीली मनसूबाबंदी की जा सके। इजलास में डिवीजन वार इंचार्ज की तैनाती और मुस्लिम वोट बैंक की अहमियत पर भी गौर किया गया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत के मंसूबों को अवाम तक मुकम्मल तौर पर पहुंचाया जाए। साबिक हुकूमत के दौरान अवाम को मरकजी फंड्स की तकसीम में धोखा दिया गया और अब भी रियासत में फंड्स के लिए मरकजी हुकूमत पर इन्हिसार है। रामचंद्र राव ने कहा कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में देही तेलंगाना की तरक्की अवाम तक पहुंचाई जाए और अवाम को मरकज़ की जानिब से फराहम किए जाने वाले फलाही इक़दामात से आगाह करना पार्टी नुमाइंदों की जिम्मेदारी है। बीजेपी में बलदियाती इंतखाबात की तैयारियां तेज हो गई हैं। हर जिले के लिए इंचार्ज मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। तेलंगाना बीजेपी दफ्तर में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गौतम राव की सदारत में ओहदेदारान का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में आइंदा होने वाले मुकामी बलदियाती इंतखाबात के हवाले से तफसीली गौर व खौज किया गया।
मीडिया से बात करते हुए कहा कि इजलास में फैसला किया गया है कि हर जिले के लिए एक इंचार्ज और एक ZPTC ओहदेदार मुकर्रर किया जाएगा ताकि इंतखाबी सरगर्मियों को मुनज़्ज़म किया जा सके। पार्टी ने ज़्यादा से ज़्यादा ZPTC नशिस्तें जीतने के लिए जामे मनसूबाबंदी तैयार की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ऐलान किया है कि 8 अक्टूबर को पार्टी के अहम रहनुमा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, साबिक MLAs और साबिक MPs के साथ एक खुसूसी इजलास मुनक्किद होगा। इजलास में जिलेवार कमेटियां तश्कील देने और उम्मीदवारों के इंतखाब के अमल को हतमी शक्ल देने का भी फैसला किया गया है। पार्टी क़यादत के मुताबिक जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। तेलंगाना RTC ने हैदराबाद और सिकंदराबाद में सिटी बसों के किरायों में मामूली इजाफे का ऐलान किया है। सिटी ऑर्डिनरी, मेट्रो एक्सप्रेस और E-एक्सप्रेस बसों में इब्तदाई 3 स्टॉप्स के लिए 5 रुपये और चौथे स्टॉप से 10 रुपये इजाफी चार्ज वसूल किया जाएगा, जबकि मेट्रो डिलक्स और E-मेट्रो AC सर्विसेज में पहले स्टॉप के लिए 5 और दूसरे स्टॉप से 10 रुपये इजाफा होगा। नया किराया 6 अक्टूबर से नाफिज होगा। हुकाम के मुताबिक ये इक़दाम इलेक्ट्रिक बसों के लिए बुनियादी सहूलियात की तैयारी के अखराजात पूरे करने के लिए किया गया है। TSRTC ने शहरियों से अपील की है कि वो माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसों को इख्तियार करके शहर के साफ और शफाफ मुस्तकबिल में हिस्सेदार बने। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने दोनों शहरों के RTC किरायों में इजाफे के फैसले पर शदीद मज़म्मत की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि नए बस किरायों की शरह में 10 रुपये का इजाफा किया गया। गरीब और मुतवस्सित तबके की जेब पर यह हमला है। वज़ीर आला के इस फैसले से हर बस मुसाफिर पर माहाना 500 रुपये का बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि तलबा के बस पास पर T24 24 टिकट चार्जेस का इजाफा किया गया। उन्होंने कहा कि कम से कम शरह पर 50% इजाफा किया गया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हैदराबाद की आवाम से बदला ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि खवातीन को मुफ्त सफ़र स्कीम से RTC का दिवालिया निकल गया है। RTC को बचाने के लिए इक़दाम करने के बजाय आम आदमी पर बोझ डाल रहे हैं। ज़हीराबाद हल्के के बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने साबिक़ वज़ीर T हरीश राव की मौजूदगी में BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि संगारेड्डी ZPT चेयरमैन निशिस्त BRS जीतेगी और मुत्तहदा मेदक जिले में गुलाबी परचम लहराएगा। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी को तेलंगाना दुश्मन करार देते हुए कहा कि एक की तारीख फरेब की है और दूसरी की गद्दारी की। हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ ने तेलंगाना को बजट में 0 हिस्सा दिया और वादे पूरे नहीं किए। गैस, पेट्रोल, GST के जरिए अवाम पर बोझ डाला। उन्होंने कहा कि KCR ही तेलंगाना के लिए वाहिद ज़ामिन है और कारकुनों से अपील की कि बलदियाती इंतखाबात में BRS की जीत के लिए मुत्तहिद हो जाएं। एक तरफ मुनहरिफ अरकान की समात स्पीकर G प्रसाद कुमार कर रहे हैं, दूसरी तरफ जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के उम्मीदवार की कांग्रेस पार्टी तलाश कर रही है। इस दौरान मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ गश्त कर रही हैं कि दानम नागेंदर जुबली हिल्स से मुकाबले के ख्वाहिशमंद हैं और इस सिलसिले में वो वज़ीर आला से बात कर चुके हैं। दूसरी तरफ वो खैरताबाद रुकन असम्बली की हैसियत से इस्तीफ़ा पेश करने पर गौर कर रहे हैं। जैसे ही ये खबर आम हुई तो दानम नागेंदर ने कहा कि उनके इस्तीफ़े की खबर बिल्कुल गलत है, वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं। उन्होंने इस खबर की मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि उनके दुश्मन इस तरह की खबरें फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी खबरों पर अवाम भरोसा न करे। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा गडम वेंकट स्वामी की 96वीं जयंती पर PCC सदर महेश कुमार गौड़, वुज़रा पूनम प्रभाकर, वाक्यश्री हरी और विवेक वेंकट स्वामी ने टैंक बंड पर उनके मुजस्समे को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि काका वेंकट स्वामी तेलंगाना तहरीक के रहनुमाओं के लिए तहरीक का ज़रिया थे। उनकी सादगी और अवामी ख़िदमात आज के सियासतदानों के लिए मशअले राह है। जुबली हिल्स अपोलो हॉस्पिटल में रन फॉर ए कॉज स्टॉप सब्सटेंस अब्यूज 3 किलोमीटर रन का आगाज वज़ीर पूनम प्रभाकर रेड्डी ने झंडी दिखाकर किया। रेस में तलबा और नौजवानों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में नौजवानों को मुस्तक़बिल के लिए तैयार कर रही है और मुनशियात के खिलाफ खुसूसी कानून नाफिज किया गया है। उन्होंने कहा कि मुनशियात, भंग और दीगर नुकसानदा मादों के खिलाफ सख्त इक़दामात किए जा रहे हैं और नशा मुक्त भारत के पैगाम को फ़रोग़ दिया जा रहा है।
वज़ीर मौसूफ ने नौजवानों को खबरदार किया कि इब्तदाई ज़िंदगी में मनशियात की तरफ राग़िब होना ज़िंदगी तबाह कर सकता है और कहा कि अपोलो हॉस्पिटल्स मेडिकल सर्विसेज के ज़रिए आगाही और समाजी खिदमत के प्रोग्राम जारी रहेंगे ताकि नौजवानों में शऊर पैदा किया जा सके। महबूब नगर रूरल एरिया में वाक़े टी टाइम होटल में अरबी कलमात और कुरानी आयात लिखी कागज़ की प्लेटों में खाने की अशिया की तकसीम के ज़रिए कुरानी कलाम की बेहुरमती पर एहतजाज करने वाले मुस्लिम नौजवानों के एहतजाज को सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस रूरल विजय कुमार की जानिब से नौजवानों से गंदी गाली गलोच करने और उनकी रिपोर्टिंग के लिए मौके पर पहुंचे रिपोर्टर और दीगर मुस्लिम नौजवानों के मोबाइल फ़ोन छीन लिए जाने की इत्तला के साथ ही मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िले महबूब नगर व सैयद सादतुल्लाह हुसैनी सदर टाउन मजलिस, फारूक अली शरीक मोतमद, मोहम्मद महबूब काउंसलर, माबूद सेठ और दीगर कायदीन के हमराह रात देर गए रूरल पुलिस स्टेशन पहुंचकर सब इंस्पेक्टर की फ़िरक़ा परस्ती के जहरीले और जारहाना रवैये के खिलाफ महबूब नगर एसपी से रब्त पैदा करके एसआई को मुअत्तल करने और अरबी कलमात की प्लेटों की तैयारी करने वाले शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। एसपी डीएसपी इंचार्ज गिरी बाबू और श्री अयप्पा सर्कल इंस्पेक्टर टाउन को पुलिस स्टेशन रवाना कर मुस्लिम कायदीन की नुमाइंदगी की समाअत के बाद सब इंस्पेक्टर विजय कुमार के खिलाफ कार्रवाई की। एसपी से सिफारिश करने का तयख्खुन देते हुए लिए गए मोबाइल फोन्स को वापस कर दिया गया। इस मौके पर मुस्लिम नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। हैदराबाद समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश हुई। हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब हैदराबाद की मुख्तलिफ इलाकों अमीरपेट, पंजागुट्टा, फिल्म नगर, खैरताबाद, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, यूसुफगुड़ा, कोठी, मलकपेट, सुल्तान बाजार, एबिट्स, नामपल्ली, बशीर बाग, लिबर्टी, हिमायत नगर, नारायणगुड़ा, लोअर टैंकबंड, नेकलेस रोड, कुतबुल्लाहपुर, चिंतल, साई नगर, मलकाजगिरी, मुशीराबाद और सिकंदराबाद के वेस्ट मारेटपल्ली इलाकों में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे सड़कों पर पानी जमा हो गया और ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। महकमा मौसमियात ने दोनों तेलुगु रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बिहार से तमिलनाडु तक हवा का दबाव बरकरार रहे, जो झारखंड और छत्तीसगढ़ के रास्ते गुजर रहा है। महकमे ने तेलंगाना के कई अजला में मुतदिल से भारी बारिश की पेशकयासी की है, जबकि साहिली आंध्रा के चंद इलाकों में भी भारी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब की बारिश का सबसे ज़्यादा जोर मुलुगु ज़िले के एटोनागार में देखा गया, जहां 11 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद के मुस्लिम माशरे में रिश्तों के तक़द्दुस, खूनी रिश्तों का एहतराम और एतबार अब दागदार होने लगा है। एक हफ्ते से भी कम मुद्दत यानी 24 सितंबर से 30 सितंबर तक 3 बहिमाना कत्ल की वारदातों ने हमारी तहजीब को दागदार कर दिया है। भतीजे ने बाप दाखिल चचा, भाई ने अपने सगे भाई और मामू ने अपनी भांजी का कत्ल किया है। पेश है एक रिपोर्ट। आलमी शोहरत याफ्ता हमारा 400 साल कदीम महज़िब शहर को ना जाने कि इसकी नज़र लग गई है। वो शहर और वो आवाम जिनकी तहजीब व कल्चर, भाईचारा व रवादारी, बड़ों का एहतराम और छोटों से शफकत के किस्से सुनाए जाते थे, वहाँ आज माहौल ये हो गया है कि सगे खूनी रिश्तों का एतबार दागदार होने लगा है। माल, जायदाद और रुपया इस कदर अजीज़ हो गया है कि खूनी रिश्तों को न सिर्फ पामाल किया जा रहा है, बल्कि इंतहाई बेदर्दी और बेरहमी का मुजाहरा करते हुए दीदा दिलरी के साथ कत्ल किया जा रहा है। हमारे माशरे में ये आम बात है कि चाचा यानी वालिद का भाई बाद दाखिल होता है,
भतीजे वालिद से ज़्यादा चचा से करीब होते हैं। जो बात वालिद से कही नहीं सकते वो चाचाओं से मनवा लेते हैं। भाई का अपने भाइयों से प्यार और एहसास, जिम्मेदारी तो हमारे माशरे के काबिल फ़ख्र बात कहलाई जाती है कि बड़ा भाई अपनी ज़िंदगियों और खुशियों और तमन्नाओं की कुर्बानी देकर अपने छोटे भाइयों और बहनों की ज़िंदगी संवारता है। इनमें सबसे खूबसूरत रिश्ता भाई का बहन के साथ होता है। भाई अपनी कमर को झुका लेता है ताकि बहन खुश रहे। ये रिश्ते और इनकी मिसालें हैदराबाद की तहजीब का हिस्सा हैं, लेकिन ना जाने उन रिश्तों, कुर्बानियों और ज़िम्मेदारों को किसकी नज़र लग गई है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते में शहरियान हैदराबाद के दिलों को दहलाने वाले और खूनी रिश्तों को शर्मसार कर देने वाले 3 ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जो रिश्तों का एतबार और तक़द्दुस को पामाल कर गए हैं। खून इस कदर सफ़ेद हो गया है कि अपनी जन्नत हराम हो जाने का खौफ है, और ना ही मुल्क की कानून की पाबंदी के बाद ज़िंदगी कैसे हो जाएगी। सिर्फ एक हफ्ते के 7 दिनों के अंदर इंतहाई काबिल एहतराम और मुक़द्दस रिश्तों को खून आलूद किया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारे और माशरे की इस्लाह के ज़िम्मेदारान खाना पूरी में लगे हैं। ये कानून की कमज़ोरियाँ ही हैं और वकीलों की मक्कारियाँ हैं कि किसी की जान लेने का फ़ैसला आसान हो गया है। माशरे में कातिलों की इज्जत और माल और दौलत के फितने ने इस्लाह के ज़िम्मेदारों के मुंह पर कुफल लगा दिया है। 24 सितंबर को पुलिस को राजेंद्र नगर के इलाके में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास मिनाजुद्दीन नामी शख्स की खून में लथपथ लाश दस्तयाब हुई, जिसे गाड़ी में कत्ल करके लाश को वहां फेंका गया था। पुलिस को तहकीकात में पता चला कि अरबाज नामी मकतूल का सगा भतीजा अपने हकीकी चाचा का कातिल है। वो हाथ जो जनाजे को कांधा देने और ख़बर में उतार कर मिट्टी डालने और फातिहा मग़फ़िरत दुआओं के लिए उठने थे, इन्हीं हाथों से अरबाज ने अपने बाप दाखिल चाचा का गला काटा, जान निकलने तक हमला करता रहा और लाश को सुनसान जगह फेंक कर भाग निकला। दूसरा शर्मनाक वाक़या बाबा नगर का है, जहां एक माँ का खून जिगर यानी दूध पीकर साथ बड़े होने वाले ईसा नामी शख्स ने अपने ही भाई मुख्तार के सीने में चाकू घोंप कर हलाक कर दिया। बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो वालिदैन ना जाने क्या क्या ख्वाब देखने लगते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर मेरी ज़िंदगी जिएगा, मेरे अधूरे ख्वाहिशात व तमन्नाओं व आरज़ुओं की तकमील करेगा, हज व उम्रा करवाएगा, एक मुस्तकिल छत का बंदोबस्त करेगा। लेकिन वही घर का बेटा अपने ही भाई को महज जहालत में कत्ल कर दे तो इन मजबूर वालिदैन पर जो गुजरती है वो और कोई नहीं समझ सकता। तीसरा होश व हवा सुन करने वाला वाक़या छावनी का है, जहाँ भाई के इंतहाई काबिल एहतराम और जिम्मेदार रिश्ते को भुलाकर समी नामी हैवान सिफत शख्स ने अपनी ही सगी बहन की 7 साला मासूम लड़की को कत्ल कर दिया। छावनी के कुछ नौजवान का ज़मीर जागा, इन्होंने एहतजाज किया और सख्त सज़ा देने का मुतालबा भी किया। यहाँ बात चंद नौजवानों के ज़मीर के जाग जाने से मुकम्मल नहीं होती, बल्कि ऐसे संगीन और शर्मनाक वाक़यात व जराइम की रोकथाम के लिए सबको फ़िक्र करने की ज़रूरत है। हमारा हाल ये हो गया है कि चंद लम्हात के लिए अफसोस का इजहार करते हैं, फिर कोई दूसरी खबरें में मशगूल हो जाते हैं। हालात काबू में आ सकते हैं उस वक्त जब आवाम अपना मुहासबा करे, रिश्तों का एहतराम करे और एक आवाज़ होकर ऐसे जराइम की रोकथाम के लिए जिद्दोजहद करें।
बड़ा बाजार याकूतपुरा में इत्तेहाद सोसाइटी के ज़र एहतमाम जलसे मरकज़ी सैयदना गौसल आज़म रहमतुल्लाह अलैह मुनक़्क़िद हुआ। ख़तीब अहले सुन्नत हाफिज़ मुफ्ती मोहम्मद वसीम असग़र ख़ान अशरफ़ी नाज़िम आला दारुस्सलाम अशरफिया कोलकाता ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। दीगर मेहमानान में मौलाना सैयद शेखैन अहमद क़ादरी शुतारी कामिल बादशाह, मौलाना हाफिज़ मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी, सदर मुफ्ती जामे निज़ामिया व डायरेक्टर अबुल हसनात इस्लामिक रिसर्च सेंटर, मौलाना सैयद ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी क़ादरी शहजादा नशीन हज़रत सूफ़ी आज़म के अलावा मौलाना सैयद क़ादिर मुहिउद्दीन जुनैद बादशाह ज़रीन कलह के अलावा दीगर ने भी शिरकत की। जलसे की निगरानी सैयद महमूद बादशाह क़ादरी ज़रीन कलह ने की। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी पर तेलंगाना हुकूमत ने 1 एकड़ 5 गुंटे ज़मीन मख्तस की है, जिसमें से 2500 मुरब्बा गज आराजी मुसलमानों के कब्रस्तान के लिए अलॉट की गई है। मज़कूरा आराजी मस्जिद गैराबाद अलीजाहपुर रोड में शेखपेट मंडल के तहत है। बाद में रुकन असम्बली कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने इलाके का दौरा करके जायजा लिया। रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने सदर मजलिस की हिदायत पर 300 सिलाई मशीनें तकसीम की। इस सिलसिले में सईद विला फंक्शन हॉल में एक तकरीब मुनक्किद हुई। मशीनें हासिल करने वालों ने रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मेराज से इज़हार तशक्कुर किया। रियासती हुकूमत की जानिब से ख़वातीन को रोज़गार से मरबूत करने के लिए मुख्तलिफ स्कीमें शुरू की गई हैं, जिसमें ख़वातीन को टेलरिंग कोर्स करवा कर उन्हें सर्टिफिकेट्स और सिलाई मशीनें भी दिए जा रहे हैं। अलावाजी सालार पकवान गैस और इलेक्ट्रिक ऑटो स्कीमें भी शामिल हैं। बेवा ख़वातीन और तनहा ज़िंदगी बसर करने वाली ख़वातीन को हुकूमत 50,000 रुपये बतौर इमदाद दे रही है, जिसके लिए ख्वाहिशमंद अपना नाम SRT कॉलोनी कम्युनिटी हॉल और अवैसी हेल्थ सेंटर वाक़ तालाब कट्टा में दर्ज करवा सकते हैं। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने मुफ्त 300 सिलाई मशीनें तकसीम की। इस सिलसिले में उर्दू मस्कन में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली के हाथों मशीनों की तकसीम अमल में आई। मशीनें हासिल करने वाली ख़वातीन ने सदर मजलिस से इज़हार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने बताया कि मजलिस ख़वातीन को रोज़गार से मरबूत करने के लिए मुमकिना कोशिशें कर रही है। इस सिलसिले में बेवा और तनहा ज़िंदगी बसर करने वाली ख़वातीन को हुकूमत से नुमाइंदगी करके रकमी इमदाद के लिए भी कोशिश की जा रही है, ताकि वो रकम से कोई कारोबार कर सकें। इस मौके पर मजलिस के रुकन कौंसल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, अराकीन बल्दिया के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। मजलिस की नुमाइंदगी पर जहानुमा डिवीज़न के इलाके चुनने की भट्टी में रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन के हाथों मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर शहर के कानगी दवाखाने के माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुफ्त मुआयना किया और इनमें दवाएं भी मुफ्त तकसीम की गईं। कैंप में 2D ईको और अमराज चश्म के डॉक्टरों ने भी हिस्सा लिया। अमराज क़ल्ब के मरीजों के लिए 2D ईको टेस्ट ज़रूरी होता है। शदीद बीमार मरीजों को एम्बुलेंस के ज़रिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने बताया कि कैंप एक कानगी दवाखाने के ताउन से मुनक्किद किया गया। कैंप में शरीक मर्द और ख़वातीन मरीजों की कसीर तादाद ने बताया कि इलाज के लिए किसी कानगी दवाखाना जाएं तो 1000 से 1500 रुपये खर्च होते हैं। उन्होंने बहादुरपुरा हल्के असम्बली में क्योंकि गरीब आवाम ज़्यादा तादाद में रहते हैं, वहाँ मज़ीद मज़कूरा कैंप्स मुनक्किद करने का सदर मजलिस से मुतालबा किया है। कैंप की निगरानी मुकामी रुकन बलदिया मुख्तदर बाबा कर रहे थे। दारुस्सलाम में रुकन कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी ने सदर मजलिस की हिदायत पर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स तकसीम किए। मज़कूरा फंड से 35 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया और उन्होंने सदर मजलिस से इज़हार तशक्कुर किया। चेक्स की जुमला मालियत ज़ायद 12,12,000 रुपये बताई जाती है। इस मौके पर मोहम्मद आसिफ के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्ज़ा अहमद बेग ने BDL इलाके का दौरा किया। हल्का असम्बली शंकरपल्ली के इलाके BDL में हुकूमत की जानिब से दिए गए 2 BHK के मकानों में बुनियादी सहूलतों का फुकदान है। इस सिलसिले में मकानात हासिल करने वालों ने सदर मजलिस से शिकायत की कि वहाँ बुनियादी सहूलतें नहीं हैं, इसके अलावा बस सर्विस भी नहीं है।
सदर मजलिस ने इस सिलसिले में रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग को ये काम सुपुर्द किया, जिस पर मिर्ज़ा रहमत बेग ने तरक्याती कामों के सिलसिले में BDL का दौरा किया और मकानात हासिल करने वालों के मसाइल की समाअत की और मकीनों को तयक़ुन दिया कि वो तमाम मसाइल की यकसुई करवाएंगे। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। कंचनबाग पुलिस स्टेशन हदूद में इक़दाम कत्ल की एक वारदात में एक शख्स का 30,000 रुपए के लिए गला काटने की कोशिश की गई। तफसीलात के मुताबिक एक शख्स अहमद बावजीर ने शेख यूसुफ को कर्ज की रकम लौटाने का मुतालबा किया। रकम न देने पर उसने शेख यूसुफ पर चाकू से हमला कर दिया। कंचनबाग पुलिस ने केस दर्ज करके जख्मी शख्स को दवाखाना मुंतकिल किया। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है, जबकि अहमद बावजीर मुकाम वाक़े से फरार बताया जा रहा है। वो इससे पहले भी इस नौयत के एक केस में कातिल पाया गया था। मेलार्दिफली पुलिस हदूद में एक शख्स नशे की हालत में खंबे पर चढ़ गया। वो जय तेलंगाना और पुलिस डाउन डाउन के नारे लगा रहा था। पुलिस ने मुकाम वाक़े पहुंचकर उसे समझा बुझाकर नीचे उतार दिया। वाज़िह है कि वो मेलार्दिफली पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचा था, लेकिन उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई, जिस पर बतौर एहतजाज वो हाई टेंशन बरकी खंबे पर चढ़कर एहतजाज करने लगा। हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब बारकस रोड पर एक्टिवा पर सवार 30 साला शख्स ईसा सारी को नामालूम गाड़ी ने टक्कर दे दी। यह हादसा इतना शदीद था कि ईसा सारी की मुकामे हादसे पर ही मौत हो गई। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। टक्कर देने वाली गाड़ी के मफरूर ड्राइवर की तलाश जारी है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद।
کیا تلنگانہ میں مجالس مقامی انتخابات 42% تحفظات پر ہوں گے؟ سیاسی جماعتوں میں تجسس، پیر کو سپریم کورٹ میں اور 8 تاریخ کو ہائی کورٹ میں سماعت۔ تلنگانہ بی جے پی میں مجالس مقامی انتخابات کی تیاریاں، ضلعی صدور اور پارٹی عاملہ ارکان کا اجلاس، ہر ضلع کا ایک انچارج مقرر، رام چندر راؤ کا اعلان۔ مال و زر کے لیے خونی رشتوں کا خون قتل آسان ہو گیا ہے، پولیس و انتظامیہ کا کمزوری کا مظاہرہ۔ اور قرض کی رقم واپس نہ لوٹانے پر ایک شخص پر قاتلانہ حملہ، کنچن باغ پولیس اسٹیشن حدود میں افسوسناک واقعہ، پولیس مصروف تحقیقات۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ 4 ٹی وی خبرنامے کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ دیکھتے رہیں 4 ٹی وی نیوز۔ خدا حافظ۔